अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स AATO द्वारा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित दूसरा अंडमान पर्यटक शो 13 मई 2024 को होटल मनसा रिजेंसी में भव्य उद्घाटन के साथ शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्रा IAS ने पर्यटन निदेशक अंडमान और निकोबार प्रशासन श्री अजरुद्दीन काजी IAS और भारत पर्यटन पोर्ट ब्लेयर के सहायक निदेशक श्री S रामकृष्ण सहित विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। उद्घाटन समारोह में IATO अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के चैप्टर चेयरमैन श्री मोहम्मद जावेद, ANCCI के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रहाद और विभिन्न स्थानीय उद्यमी जैसे उल्लेखनीय हस्तियों ने भी भाग लिया। रोड शो में पर्यटक मंत्रालय IATO, TAAI, ATOAI और ADTOI के साथ महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ 50 प्रमुख टूर ऑपरेटरों ने भाग लिया। सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोग, ट्रैवल ब्लॉगर, ट्रैवल जर्नलिस्ट ने भी भाग लिया, जिन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी पर्यटक हितधारियों का समर्थन प्राप्त है। अपने स्वागत भाषण में AATO के अध्यक्ष श्री M विनोद ने आशा व्यक्त की है कि रोड शो मुख्य भूमि के प्रतिनिधियों और टूर ऑपरेटरों को द्वीपों की अनूठी सुंदरता का अनुभव करने का अवसर देगा। My dear friend, President Andaman Association of Tourist Operators, M विनोद जी, मेरे साथ उपस्थित यहाँ जाटवेट साहब, प्रहलाद साहब, my colleague, Director Tourism, one of my colleagues who has come from Government of India, all the tourist operators who are gathered here from all parts of the country. First of all, I extend you very warm welcome, and especially for those who are coming here for the first time, but I am quite sure that most of you must have visited this place earlier. And if you are coming for the first time, you will realize that what a discovery it is. You know, recent events have more or less given a new focus and a new lease of life to these two islands, especially the Andaman and Nicobar group of islands and Lakshadweep. And you understand that which incident I am hinting at. The idea of the government is that the tourism sector should get all the support it needs in whatever way it requires. And we are absolutely committed towards that. And we are very fortunate that ATO is also doing the same thing on their own. They are so committed. In fact, Mr. Vinod tells me that at times government, the way it functions, at times it sleeps also, does not respond to the actual need of the hour. There have been times when the festivals have been put in different parts of the country and globe, and even if there is no government support in that particular exhibition, he on his own, he garners all the money and all the resources, and he goes there, puts up exhibition, and he comes and tells me also that Andaman has been represented. You rest assured that even there was a lapse, we have gone and represented you. And so there is a tremendous synergy going on for the sector. The people who are already working in this sector, especially Vinod and his team, and all those who are providing ancillary services, the macros, the hotels, the other tour guides, all that kind of the cohesive unit which the entire sector requires, that cohesive synergy is there. And so what we need is the support of all you guests and friends who have come from different parts of the country to help us grow, and help us grow not in the business sense. Ultimately, obviously everybody is going to benefit out of this. Help us grow because our country needs this particular sector to grow here, and we keeping that in mind, and everybody is going to benefit. You are also going to benefit, and here people are also going to benefit. And this is, trust me, this is the mandate of this is one of the priorities of the government, and also the mandate of the government. And so with this commitment, let's work together. And I thank you all for inviting me here.
And I apologize again for coming a bit late, but only because of this sector I was slightly delayed. Thank you so much. जिससे ब्रांड अंडमान का प्रचार बढ़ेगा। उन्होंने साहसिक खेलों, विशिष्ट वनस्पतियों और जीवों और प्राचीन समुद्र तटों सहित द्वीपों के अनूठे विक्रय बिंदुओं पर प्रकाश डाला और प्रतिनिधियों से अंडमान द्वीप समूह को साल भर के पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने का आग्रह किया। जावेद ने अपने भाषण में द्वीप के पर्यटन क्षेत्र में 20 वर्षों के योगदान के लिए AATO की सराहना की। उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि रोड शो द्वीपों में विविध पर्यटन पेशकशों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन विकास को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत विनिर्माण बुनियादी ढांचे के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रमुख सचिव ने AATO की 20 वर्षों की उपलब्धियों का जश्न मनाने वाली एक पुस्तक का विमोचन करके और AATO की वेबसाइट लॉन्च करके इस अवसर को चिन्हित किया। उन्होंने विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करते हुए प्रदर्शनियों का भी दौरा किया। प्रतिनिधियों के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने वाला एक वीडियो भी दिखाया गया। कार्यक्रम में सुश्री श्रेया ब्रह्मा द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया और AATO महासचिव श्री के हमजा के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समापन हुआ, जिसके बाद प्रतिनिधियों द्वारा द्वीप पर्यटन हितधारकों के बीच बातचीत हुई। 4 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान टूर ऑपरेटर और प्रतिनिधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पर्यटन क्षमता को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप जैसे प्रमुख स्थलों के साथ साथ ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व के अन्य स्थानों का दौरा करेंगे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।